all know Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is Thursday, आज Thursday है, and we are here with the Hindu analysis of 20th July. So if I'm audible and visible, please write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can start our session. ताकि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर सके. Yes. Someone is asking, sir, what is U20? देखो G20 होता है ना, तो G20 के अंदर बहुत सारे सबमिट हुआ है, जैसे B20 यानी business leaders of these 20 nations, Youth 20 young leaders of these 20 nations, similarly S20 scientists of these 20 nations come together and meet. ठीक है? Alok Pratap, is it clear? Yes. Okay. Fine. Now let's start with the today's editorial. Today's article: Activist 𝗖𝗂𝗴𝗶𝗴𝗃 to continue on bail, says Supreme Court. 15 electrocuted at 𝗟𝗏𝗀 𝗥𝗲 site in Uttarakhand. So these are the two important articles. तो पहले हम लोग ये वाला जानते हैं. See, actually, I'll not be going very much in detail. Just have a basic idea about it. Actually, what happened was there was some case regarding Zakia Jafri case and all related with Gujarat riots and also the Supreme Court had given some comment about 𝗖𝗂𝗴𝗹𝗀. Then after that, she was arrested by Gujarat police. So that's इतना detail नहीं जाना है, but basic idea should be there. Then she was given interim bail by some other bench of Supreme Court. Interim मतलब होता है temporary bail. Okay. Then she was supposed to move Gujarat High Court for final or regular मतलब complete bail. But Gujarat High Court actually rejected this bail, refused to give her bail. Then again she moved the Supreme Court, and finally Supreme Court actually gave her bail. बस इतना पता होना चाहिए, इसमें इतना detail नहीं जाना है. That's not important for your exam point of view, but just a basic idea about it. ठीक है? So that is what is being discussed about it. The top court said 𝗟𝗏𝗴𝗃 would continue on bail in accordance with the September order and all. ठीक है? So just go and read it. इसमें कुछ nothing to go in detail and all, है ना? Okay, yes. So that is what it is. दूसरा पे चलते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. दैट इज इलेक्ट्रोक्यूशन. यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोक्यूशन? इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है इफ अ पर्सन डाइज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी शॉक, बिजली के लगने से मौत हो जाना, उसको इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं. ओके, so this is a very sad news where actually 15 electrocuted at 𝗟𝗏𝗀 𝗥𝗲 site in Uttarakhand. देखो 𝗟𝗏𝗀 𝗥𝗲 परियोजना is there. 𝗟𝗏𝗀 𝗥𝗲 परियोजना और 𝗟𝗏𝗀 𝗥𝗲 scheme, whatever you can say. This is an initiative for clean Ganga initiative, आप एक तरह से कह सकते हो. Okay, yes. Now, can anyone tell me what is the mascot of 𝗟𝗏𝗀 𝗥𝗲? Who is the mascot? Actually, I think 1 or 2 years back, a mascot was also made for 𝗟𝗏𝗀 𝗥𝗲. Mascot मतलब होता है एक तरह का कार्टून जैसे समझ लो, any animation which represents, है ना? So I hope you are aware of this. Go and find out and answer me. तो देखो एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रोक्यूशन का कारण. जैसे एक ना लास्ट ईयर की एक आर्टिकल है डेक्कन हेराल्ड की, वायर्स हैंगिंग हैजार्डसली इन पब्लिक प्लेसेस. हाँ, चाचा चौधरी 𝗟𝗏𝗀 𝗥𝗲 के जो मैस्कॉट है, इट्स एक्चुअली चाचा चौधरी. Yes, Gauri, very good. चाचा चौधरी is actually a very famous comic book आती थी, आपको पता होगा शायद, है ना? It's very famous. Yes, Pranjali, Manu, you all are right. अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, I'll give you an example कि क्या होता है एक्चुअली. देखो जिस तरह ऐसे मान लो ओपन वायर्स हैं, these are actually considered as very dangerous, especially after rainfall. बारिश के बाद जो होती है चांसेस और बढ़ जाता है इलेक्ट्रोक्यूशन का. आपने देखा होगा जब बारिश आते हैं, बाढ़ आते हैं, तो ज्यादा चांस होता है कि लोगों की मौत इलेक्ट्रिसिटी करंट लगने से होती है. अब जैसे ओपन वायर है, इट कैन प्रूव डेंजरस. देयर इज नो गारंटी कि दीज आर परफेक्ट. कोई गलती से टच कर जाए, बच्चा आ जाए टच कर जाए. Recently, I mean, few weeks back, this unfortunate incident happened near New Delhi station. आपने सुना होगा. So there was a lady, I mean, it was a teacher, school teacher, and she was supposed to go on Vande Bharat Express in the morning somewhere for her holiday and all. तो उन्होंने गलती से, बारिश वगैरह हुई भी थी और गलती से उन्होंने पोल टच कर दिया. शी मिस्टेकनली टच द पोल एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड. सो दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोक्यूशन. सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. यस, वेरी गुड गौरी. हाँ, जब वाटर बारिश होती है ना, रेनफॉल से, यस, वाटर इज अ गुड कंडक्टर एंड ऑल, तो उससे और ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉक इज वेरी हाई व्हेन देयर इज रेनफॉल एंड ऑल. तो अभी 15 पीपल वर इलेक्ट्रोक्यूटेड एंड 7 इंजर्ड, यानी 15 का डेथ हो गया
और 7 इंजर्ड हैं, यानी डेथ तो नहीं हुआ है लेकिन उन लोगों को भी शॉक लगा होगा. At a sewage treatment plant in Namami Ganga project on Alaknanda River in Chamoli district. Okay, so this you should be knowing it. Chamoli district बहुत famous है. I mean, infamous you can say for floods and landslides. यहाँ कई बार आ चुका है पहले भी, आपने देखा होगा. I hope you are aware of that if you are reading the newspaper and all. So 11:30 AM a surge of electricity passed through a metal railing at the plant premises, killing 15 and all. अचानक बिजली आ गई और उन लोगों की डेथ हो गई. Just have an idea about it. Okay, now there's a question for you. Alaknanda river and Dash river meets at Dash to form Ganga. क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा रिवर की बात हो रही है कि they're talking about Alaknanda river. That is why this question for you. Your options are Bhagirathi in Rudraprayag, Yamuna in Prayagraj, Bhagirathi, Devprayag, Mandakini in Dehradun. Your time starts now. बताइए, anyone? अलकनंदा और कौन सी रिवर मिलकर के कौन सी जगह पर मिलती है कि गंगा बनने के लिए? यस, वेरी गुड. गौरी, नम्रा, आफ्ताब, प्रिया, चवन, रश्मिकांत, जोया, धनंजय, नितिका, बहुत से लोगों ने आंसर किया. आलोक, प्रताप, जागृति. यस, अलकनंदा एंड भागीरथी मीट्स एट देव प्रयाग विच इज अ सिटी इन उत्तराखंड टू फॉर्म गंगा, है ना. ऐसा कुछ होता है. देखो अगर आप गौर से देखोगे, सो दिस इज, ये जो ब्लू वाला नहीं, अलकनंदा है, एंड दिस इज भागीरथी, एंड बोथ मीट्स एट देव प्रयाग टू फॉर्म गंगा. ठीक है. अलकनंदा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, जैसे नंदाकिनी, पिंदार गंगा, मंदाकिनी, धौली गंगा, दीज आर द ट्रिब्यूटरी, लेकिन जो मेन है वो ये अलकनंदा है, ये भागीरथी, ये दोनों मिलते हैं देव प्रयाग में. दिस इज इन उत्तराखंड, ये पूरा उत्तराखंड का सीन है. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स गंगा. ये फेमस, बहुत फेमस फोटो है. आई होप यू आर अवेयर. देखो ये जो है ना, ये वाली जो मिल करके दे आर फॉर्मिंग गंगा. एक्चुअली ये गंगा बनती है. ठीक है. अब इसमें से कोई एक जो है, एक अलकनंदा है, एक भागीरथी. आप चेक कर रहे हैं ना कौन सी अलकनंदा है, कौन सी भागीरथी है. ठीक है. सो बोथ बीट्स, ये काफी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज. अगर आप गौर से देखोगे तो कलर भी दोनों का डिफरेंट है ना. सो इवन द कलर्स आर आल्सो डिफरेंट. सो वन ऑफ देम इज अलकनंदा, आई गेस दिस वन. आप एक बार चेक कर लेना कौन सा अलकनंदा है, कौन सा भागीरथी है. एंड दिस इज एक्चुअली द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी टू फॉर्म देव प्रयाग. ठीक है. हाँ. यहाँ पर भी ये कुछ इमेज है. यहाँ पे बगल में हाईवे है, आप देख सकते हो, ये दोनों रिवर आ रही है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट मीट्स टू फॉर्म एक्चुअली गंगा. ओके. यस, हाँ, डिफरेंट कलर्स, राइट. हाँ, ग्रीन इज अलकनंदा मे बी. ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना. ठीक है. ओके. सो यस, बिफोर मूविंग ऑन गाइस, वी आर प्रोवाइडिंग अ 90% स्कॉलरशिप. ठीक है. सो 23 जुलाई को 11 AM in the morning we'll be conducting a scholarship. If you qualify it, you will get up to 90% off on this course. तो इसमें हम लोग क्रैश कोर्स भी एक रन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग CLAT एग्जाम. सो 300 plus recorded videos, 200 plus hours of live session, 35 plus mock tests are being provided. If you have question, call on this number 9538895678 पे कॉल कर सकते हो. Okay. And this is, we are providing a 3-day free trial also. Go to download our app, go to CLAT section and get this access, or the link is given in the description. Yes, on our YouTube channel, सबको सब्सक्राइब कर देना. If you have not subscribed to it, please subscribe to the button, subscribe the channel, because we'll be coming up with 6 hours non-stop marathon. Will be coming soon, हम लोग announce करेंगे, and these all 5 faculties will be coming up with this 6-hour non-stop marathon session. ठीक है. Okay, so subscribe कर देना चैनल को. Yes. Okay. Yes. Now let's talk about this one. A job and career right the disabled cannot be denied. ठीक है. अब देखो, he is actually talking about the rights of disabled, physically disabled. You understand? Actually इनके लिए और भी decent words लिखा था, जैसे differently abled भी लिखते हैं कहीं कहीं पे. Differently abled. This word is mentioned to make it more euphemistic. कहीं पे handicapped, physically handicapped, ये सब word लिखा रहेगा. But nowadays this word is used. Differently abled. Okay? So just have an idea about it. तो he is actually talking about, तो इनका मेन मकसद है, he is talking about reservation in promotion. In promotion for disabled or differently abled, for PWD शॉर्ट में लिख देते हैं, physically disabled. Okay. Now, आपको समझना कि क्या, why he is talking about it. So he is saying justice delayed is justice denied. ये कहा जाता है, बहुत फेमस है, कि अगर देर से इंसाफ दिया जाए तो एक तरह से इंसाफ छीन लिया गया, मतलब इस तरह का है जैसा, है ना. So that is what actually he is talking about.
So he's saying is a context statement used in the context of judicial cases that have been on pending on long in courts. There could be several factors, reasons for such a situation and all. तो ये सब बता रहे हैं अपना, ठीक है. Now he's talking about this person of disabilities, equal opportunities, protection of rights and full participation act 1995. First recognize the right of disabled person to be employed and promoted in government jobs on equal and other basis, है ना. तो इसने रिकॉग्नाइज किया था, हाँ, कि एम्प्लॉयमेंट मिले उनको और प्रमोशन मिले गवर्नमेंट जॉब्स में, है ना. एंड इंश्योर 3% रिजर्वेशन फॉर डिसेबल्ड, तो 3% रिजर्वेशन की भी बात कही गई थी, है ना. So the reservation for the seats disabled existed in Group C and D prior to the introduction of this act. However, after this it extended to Group A and Group B. तो होता क्या है, गवर्नमेंट सर्विस में there are generally 4 रैंक, है ना, बहुत फेमस होता है. ग्रुप ए सर्विस, क्लास 1 ऑफिसर कहते हैं, ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप सी सर्विस, ग्रुप डी सर्विस, है ना. सो क्लास 1 ऑफिसर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, IRS, है ना, IRTS, these are actually come here, है ना. सो या जो भी आर्मी के जो क्वालिफाई UPSC से क्वालिफाई, NDA क्वालिफाई करके जाते हैं, दे आर जनरली ग्रुप ए सर्विसेज. ग्रुप बी सर्विसेज जनरली आर स्टेट PCS ऑफिसर्स, है ना. सी और डी जो होते हैं थोड़ा नीचे लेवल के होते हैं, दे आर जनरली सेलेक्टेड विद SSC एंड डिफरेंट लेवल ऑफ SSC एग्जाम्स. तो बता रहे हैं कि इनिशियली ग्रुप सी और ग्रुप डी में फिजिकली डिसेबल्ड को रिजर्वेशन था, और इस कानून के बाद आफ्टर दिस एक्ट इवन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज आर गेटिंग in that also they are getting the benefit of reservation, physically disabled people, है ना. So in addition to this, is also fixed percentage of reservation of seats which open the gates for recruitment to disabled people in different sectors of government job, है ना. तो और भी डिफरेंट जगह 3% रिजर्वेशन की बात कही गई फॉर देम. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन. अब देखो क्यों प्रमोशन में एक्चुअली रिजर्वेशन की बात होती है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. देखो होता क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, दिस इज those who justified that I'm giving an example कि प्रमोशन पे क्यों फोकस करते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर पर्सन फ्रॉम 2 बैकग्राउंड्स, रिच एंड एफ्लुएंट बैकग्राउंड, ठीक है, और एक है पुअर. तो प्रोबेबिलिटी अगर कोई गरीब घर का होता है ना, उसकी फिजिकल डिसेबल्ड होने की चांसेस ज्यादा होती है. मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बिकॉज यस दे हैव द इशू ऑफ माल नरिशमेंट एंड ऑल, ठीक है. तो आपने देखा होगा पुअर्स डू सफर अ लॉट, पोलियो वगैरह की बीमारी या कोई और डिफरेंट फिजिकली डिसेबल्ड पीपल पुअर्स में ज्यादा होते हैं. अब जैसे जो रिच एंड एफ्लुएंट रहते हैं, दे क्वालिफाइड एनी एग्जाम वेरी इजीली, मतलब इजीली तो नहीं कहेंगे लेकिन कंपैरेटिवली इजीली, बिकॉज दे हैव द एक्सेस टू द टॉप क्वालिटी एजुकेशन एंड एवरीथिंग, दे कैन गेट एक्सेस, दे हैव नो प्रॉब्लम ऑफ मनी एंड ऑल. तो ये मान लो कोई बच्चा है, ये बंदा 25 ईयर्स में क्वालिफाई कर गया, या 23-24 ईयर्स में ही क्वालिफाइड एन IAS एग्जाम, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है, या जुडिशरी एग्जाम, जज बन गया, कुछ भी. अभी जो गरीब का बच्चा है उसको टाइम ज्यादा लग जाता है, समटाइम्स इट टेक्स 30, 32, 35 हो सकता है ऐसा लग जाए, बिकॉज ही सफरिंग एंड ऑल. तो अब जो पहले क्वालिफाई करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना प्रोमोट होकर ऊपर तक जाने की. यस, एंड द वन हु क्वालिफाइज लेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सीनियर पोस्ट इज वेरी लेस. एंड इन फैक्ट इट हैज बीन सीन, अगर आप देखोगे ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऊपर से ऊपर के ऑफिसर्स, वेरी फ्यू ऑफिसर्स आर एक्चुअली दलित्स, very few officers are actually Dalit. That is in fact the argument supported by those who says कि reservation in promotion should be given. तो ये दलील देते हैं. Okay, so that is what he is actually talking about it कि there should be promotion for physically disabled के लिए reservation में ही promotion होना चाहिए. लेकिन उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है. हाँ, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हो सकता है कोई जब बंदा जूनियर है वो बाद में जाके ना सीनियर बन जाए किसी आदमी से, अगर उसको रिजर्वेशन प्रमोशन मिल जाए. मान लो फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ DM है, इसके नीचे SDM है, ठीक है, इसके नीचे होता है ना, और इसके ऊपर फिर मान ली कमिश्नर है ना. अब इसको जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिल गया, हो सकता है कुछ दिन बाद ये इसके ऊपर चला जाए, ये बंदा के, ठीक है. सो दैट कैन हैपन आल्सो. सो वंस अ पर्सन हु वाज अ जूनियर मे लेटर ऑन बिकम द सीनियर ऑफ द सेम पर्सन, ठीक है. सो दैट इज एन इशू. तो उसमें बहुत सारे मतलब सपोर्टिव आइडियाज है, अपोजिट आइडियाज है, ठीक है. तो उसमें बहुत सारे डिबेट्स है. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, आई हैव गिवन यू बोथ द एस्पेक्ट्स, ठीक है. खैर, सो देन ही इज टॉकिंग अबाउट इंदिरा सानी केस, बहुत फेमस केस, इसको हम लोग मंडल केस कहते हैं, व्हिच इज अबाउट OBC रिजर्वेशन वाज चैलेंज्ड इन दिस केस, इट वाज अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, है ना. तो ये सब पता होगा आपको. देन ही इज टॉकिंग अबाउट इट. तो उन्होंने कुछ दलील दी कि जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन होना क्यों चाहिए, इसलिए कि देखो जैसे फिजिकली डिसेबल्ड है और ये कॉमन मैन है, दोनों जो है सेम चीज नहीं सफर करता है ना. जैसे ये बंदा फिट है ना, सो इसको अगर मान लो फॉर एग्जांपल जैसे 120 मार्क्स का कोई एग्जाम है, मान लो CLAT का एग्जाम है,
अगर इसने 100 मार्क्स लाया, ओके, जितना मेहनत करके शायद उसको 80 मार्क्स लाने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करना पड़े, ऐसा हो सकता है ना, बिकॉज ही डू नॉट हैव टू सफर एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सो मींस दे आर सेइंग कि अगर इसको 100 मार्क्स में आप क्वालिफाई करते हो तो उसको आप 80 मार्क्स में क्वालिफाई कर दो, बिकॉज मे बी ही माइट हैव वर्कड हार्डर टू गेट 80 मार्क्स, है ना, तो वी कैन नॉट ट्रीट बोथ एज इक्वल्स। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। Participate in competitive exam and scores great marks that would get selected without reservation. Yes, Pranjali, yes, nice question. उसके लिए होता है कि अगर वो जनरल कैटेगरी का सारा चीज फुलफिल करा तो वहां से सीट दे दी जाती है। यस प्रांजलि, यू आर राइट, नाइस क्वेश्चन, ठीक है, ओके, यस, हाँ, ओके, हाँ, then let's talk about the Department of Personnel Training interpreted the Parliament enacted to be applicable to person with disability also as they are from marginalized section of society and hence enjoy similar protection from state law and all. ठीक है, अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, इतना बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है गिवन, मैंने आपको सारा आर्ग्यूमेंट्स बता दिया कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। सो ही इज टॉकिंग अबाउट अ केस ऑफ राजीव गुप्ता इवेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, है ना, टू ग्रांट रिजर्वेशन प्रमोशन की बात कही थी फॉर डिसेबल्ड इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, but still they have not been implemented, regrettably had not been taken back by Department of Personnel Training, तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो वही मतलब एक तरह से थोड़ा सा शिकायत कर रहे हैं, आप कह सकते हो। सो ही सेइंग कि he should have been implemented। रिजर्वेशन इन प्रमोशन की वो बात कर रहे हैं कि ये भी इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, ठीक है, रिजर्वेशन इज देयर बट रिजर्वेशन इन प्रमोशन ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो ये आपको समझना है, हाँ, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, हाँ। It is important that in both the cases court challenges the decision in the Rida Sani case and all. अब इतना दलील पर नहीं जाना है, no need to go in detail. I have given both the arguments. He is actually supporting reservation in promotion. इतना बस समझ लेना, reservation in promotion for physically disabled, which has not been given everywhere. ठीक है, तो उनकी ये बात है कि promotion में भी physically disabled को reservation मिलना चाहिए। Okay, yes. Okay, ठीक है, judiciary has played significant role in granting justice and equality to the disabled and all after enactment of Physical Disabled Act and all. There have been several court cases where person with disability have redress of their grievance and all, ठीक है, तो इसी सब की उन्होंने बात की है, they has talked about in detail। अब इतना डिटेल जाना नहीं है, nothing, no need to go very much in detail, ठीक है, ये बस बताना चाहिए कि this is actually if you are we are providing reservation to physically disabled, this is actually an example of social justice, है ना, सोशल जस्टिस या इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, इन्हें सबको लेकर चलना, है ना, ये सब टर्म कुछ पता होना चाहिए, बस एक बेसिक होना चाहिए। यस गरिमा, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस। एक होता है रिजर्वेशन देना, ठीक है, जैसे मान लो 100 सीट है एंड यू आर गिविंग 3% रिजर्वेशन, यानी 3 सीट जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड के लिए रिजर्व है, दिस इज देयर, बट ही इज टॉकिंग अबाउट प्रमोशन आल्सो, कि प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रमोशन रिजर्वेशन मैंने बताया ना, एज की वजह से जनरली दे क्वालिफाइड लेट एनी एग्जाम, तो उनकी उम्र ज्यादा होती है तो सीनियर तक नहीं पहुंच सकते हैं, सो दैट इज व्हाई दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन एंड ऑल, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, है ना, ओके, यस, हाँ। फिर एक और गवर्नमेंट का कैंपेन है, यू नो दिस सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? इसका एक और नाम है इंग्लिश में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये भी फिजिकली डिसेबल्ड से रिलेटेड, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इसमें क्या होता है, मींस द कैंपेन इज एक्चुअली टू इंश्योर दैट ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स शुड बी एक्सेसिबल, शुड बी मेड एक्सेसिबल फॉर फिजिकली डिसेबल्ड एज वेल। मतलब क्या होता है, हाँ, इसके क्या होता है, बहुत सारे फिजिकली डिसेबल्ड है, वो अगर व्हील चेयर पे चल रहे हैं, अब उनको मान लो ऊपर जाना है, ठीक है, मान लो ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग है, ये दिस इज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, ओके, सो 1 2 3 4 फ्लोर है, 1 2 3 4, अब उनको ऊपर जाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सीढ़ी नहीं होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ स्टेयर देयर शुड बी स्लोप, सीढ़ी भी हो, देयर शुड बी अ स्टेयर, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी स्लोप सो दैट दे कैन मूव, ठीक है। दूसरी बात, लिफ्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि उनका पूरा व्हील चेयर चला जाए, एकदम छोटा सा लिफ्ट नहीं हो, देयर शुड बी अ बिग एनफ लिफ्ट शुड बी देयर, है ना, सो दैट देयर व्हील चेयर कैन गो। तो आपको ऐसा बिल्डिंग बनाना है कि सीढ़ी के साथ साथ स्लोप भी हो, लिफ्ट भी हो, इतना बड़ा हो ताकि वो चले जाए, मतलब एक्सेसिबल बनाना है। अगर उनको टॉप फ्लोर पे भी जाना हो, इफ अ फिजिकली डिसेबल्ड वांट्स टू गो टू द टॉप फ्लोर, ही और शी कैन रीच, ठीक है। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकली डिसेबलमेंट, है ना, डिसेबलमेंट बहुत तरह का होता है, लेकिन वही एक्चुअली मेन आइडिया, ठीक है।
ओके हाँ, इन न्यू पार्लियामेंट, यस वेरी गुड आलोक प्रताप, इनफैक्ट जो न्यू पार्लियामेंट है उसमें इस तरह का बना हुआ भी है, यस करेक्ट, यस वेरी गुड. Okay, more than courts action, revisit the Indus Water Treaty and all. Now he's talking about Indus Water Treaty. उससे पहले एक क्वेश्चन है, ठीक है. Indus Water Treaty between India and Pakistan was brokered by IMF, World Bank, UNPKF, UNSC. UNPKF मतलब UN Peacekeeping Force लिख देते हैं, Keeping Force. UNSC मतलब UN Security Council. बताइए कौन से ईयर में, बताइए. एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एट दैट टाइम. पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट थे, लेकिन इंडिया में बताइए प्राइम मिनिस्टर कौन थे. यस, वर्ल्ड बैंक. सो इट वाज ब्रोकर्ड, है ना, नेगोशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, है ना, इन 1960 बिटवीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट अयूब खान, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, यस 1960 में हुआ था. ठीक है, जस्ट हैव एन आइडिया. यस वेरी गुड. हाँ, तो उसमें यह है कि 3 रिवर्स ब्यास, रावी, सतलज विल गो टू इंडिया एंड द रेस्ट इंडस, चनाब, झेलम विल गो टू पाकिस्तान एंड ऑल. ठीक है, तो यही मेन था. इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब ये कि समथिंग लाइक दैट. सो इंडस रिवर इज गोइंग लाइक दिस इज इंडस, देन झेलम, देन चनाब, ये झेलम है, ये चनाब है, फिर रावी, ब्यास, सतलज, है ना, ऐसा कुछ होगा, रावी, ब्यास, सतलज. सो ये आगे जाके से मिल जाते हैं फिर. ठीक है, समथिंग लाइक दिस, दे गो एंड मीट हियर. ठीक है, तो ऊपर की जो 3 रिवर है, ठीक है, इंडस, झेलम, चनाब, दे आर सपोज टू गो टू पाकिस्तान, एंड रावी, ब्यास, सतलज, द वाटर शुड बी यूटिलाइज्ड बाय इंडिया. ये था. दूसरी बात ये था कि इंडस का 20% वाटर कैन बी यूज्ड बाय इंडिया, है ना. सो दैट इज व्हाट इट वाज द एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी, है ना. ठीक है, अब इसमें हुआ यह है कि द पाकिस्तान इनिशिएटेड आर्बिट्रेशन एट द हेग बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन टू एड्रेस द इश्यूज एंड ऑल. क्या था भाई? सो किशन गंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. तो एक्चुअली क्या कर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे झेलम है ना, तो उसकी एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, छोटी सी ट्रिब्यूटरी किशन गंगा. सो इंडिया इज मेकिंग एक्चुअली पावर प्रोजेक्ट ऑन दिस. फिर दूसरे यहाँ पे एक चेनाब है, चेनाब रिवर मैंने बताया, और इसका इंडिया इज मेकिंग रैटल प्रोजेक्ट. सो एक्चुअली पाकिस्तान फाइल्ड, वी कैन से, वेंट टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अगेंस्ट दिस, दैट दिस इज वॉयलेशन ऑफ ट्रीटी एंड ऑल. ठीक है, तो ये मैंने हम लोग पहले डिस्कस किया था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वी हैव डिस्कस्ड इट. आर्बिट्रेशन का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली द जुडिशरी. आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि आर्बिट्रेशन मतलब आप समझ लो कि इट्स सॉर्ट ऑफ आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट को आर्बिट्रेशन जनरली वर्ड यूज करते हैं, है ना. बट ये जो है, विथ दिस एक्चुअली आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, आई थिंक फ्यू डेज बैक, 1 or 2 weeks बैक, जब हम बता रहे थे चाइना वर्सेस फिलीपींस का इशू. यू रिमेंबर दैट? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि दिस इज एक्चुअली हेडक्वार्टर्ड इन द हेग. जैसे ये इंडिया है ना, दिस इज नेदरलैंड में द हेग है. हाँ, मेडिएटर टाइप थिंग, यस, टू सेटल डिस्प्यूट एंड ऑल. तो ये है आपका पीस पैलेस बिल्डिंग, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. इन द सेम बिल्डिंग यू विल फाइंड PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. ठीक है, बट ये एक तरह का कोर्ट ही माना जाता है, नॉट एक्जैक्टली द कोर्ट. इट्स नॉट करेक्ट टू से इट इज अ कोर्ट, बट वेरी सिमिलर टू दैट, क्वाज़ी जुडिशियल कह सकते हो. हाँ, सो उसमें क्या हुआ, इंडिया सेड कि दिस इज एक्चुअली, दिस मैटर कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय PCA. दैट इज व्हाट आवर ओपिनियन इज, एंड द रीजन आई एम टेलिंग यू. देखो ये था इंडिया का रीजन कि देखो ये, आई होप यू आर अवेयर, इन लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक अपॉइंट्स न्यूट्रल एक्सपर्ट चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. ठीक है, तो जैसे माइकल लीनो एंड अदर्स वेयर अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट, एंड सीन मर्फी हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रिगार्डिंग किशन गंगा एंड रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट. तो ये 2 प्रोजेक्ट से रिलेटेड के लिए ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर रखा है, देखो, टू सॉल्व दिस इशू, है ना. ओके, बट स्टिल पाकिस्तान वेंट टू PCA एंड ऑल. तो इंडिया का ओपिनियन ये था, आवर ओपिनियन इज कि आई मीन PCA इज नॉट कॉम्पिटेंट और डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू पास एन ऑर्डर इन दिस रिगार्ड. बट PCA रिसेंटली केम अप विद अ जजमेंट, अभी 7 जुलाई को, 6 जुलाई को, कि हेग कोर्ट में तो भाई PCA की बात कर रहे हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, says it is competent to decide proceeding against initiated by Pakistan. India rejects ruling. यानी we have rejected this, है ना. So ये इसी को यहाँ लिखा उन्होंने. ठीक है, that is what he is talking about. हाँ, yes, प्रांजलि, mediation arbitration थोड़ा सा फर्क होता है, of course. हाँ, ठीक है. So Arindam Bagchi, Mr. Arindam Bagchi, who is the spokesperson of Ministry of External Affairs, he said
that proceedings by neutral expert are only treaty consistent proceeding at this junction and parallel proceedings at the same set of issues are prohibited on Indus water treaty. पैरेलल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा ना, दो जगह अलग अलग चीज चल रही है, एक यहाँ पे भी चल रहा है, एक वहां पे भी चल रहा है ना. सो दैट इज व्हाट आवर स्टैंड इज कि लेट्स, है ना, लेट्स इंश्योर कि जो न्यूट्रल आर्बिट्रेशन के लिए बनाया गया, लेट्स टॉक अबाउट दैट, है ना, व्हाई वी आर गोइंग टू, है ना. वी थिंक दैट पेटेंटली लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड इन contravention of the treaty, that is permanent court of arbitration, he added, है ना. So that is what it was in the news. ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं. Then he is going, author is going very much in detail. अब इतना डिटेल नहीं जाना है, जो बेसिक फैक्ट्स वो आपको पता होना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड. कब हुआ? व्हेन इट वाज साइंड 1960. बिटवीन होम? 6 रिवर्स में 3 रिवर पाकिस्तान को, 3 रिवर इंडिया को, है ना. एंड फ्रॉम दिस 3 इंडस वाटर का 20% इंडिया कैन यूज, है ना. बस इतना बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब इतना डिटेल नहीं जाना है कि व्हाट इज इक्विटेबल रीजनेबल यूटिलाइजेशन. ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं, इतना थोड़ी कोई जानना है. ठीक है, जो बेसिक फेमस लॉज है ना, जैसे यूएन क्लॉज है, फेमस लॉज, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट. ओके, यस. मिसिंग नंबर्स, देखो इसमें हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दैट द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी टू रिवाइज रिवैम्प ऑल एनएसओ डेटा. हम लोगों ने करवाया है 2 days बैक. revamp all NSO data and due to data inadequacy. Data में कुछ गड़बड़ी थी, शायद उतना perfect नहीं था. So government has decided to actually set up a committee and a committee on statistics. This will be led by actually Mr. 𝗟𝗏𝗴𝗹 𝗀, who is India's first chief statistician, है ना. So that is what is being talked about here. तो देखो, let's wait for the judgment, let's wait for the final result. अभी इसमें क्या comment करे आदमी? Let's wait for that, है ना. So then we'll be discussing about it. Let's talk about opinion में है online abuse among college students. Yes, she's actually a cyber harassment expert and all. देखो अब क्या है here, actually we are talking about negative aspect of technology या social media, whatever you can say, of technology. तो टेक्नोलॉजी की बहुत सारे फायदे हैं. Yes, no doubt about it. Like there are lot of things, है ना. E-court is there, e-education is there, e-policing is there. बहुत सारी चीज आप मतलब टेलीमेडिसिन जो आप कहते हैं, ई हेल्थ जिसका कॉन्सेप्ट होता है, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग इज देयर. तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बहुत सारी चीज पुलिसिंग कर सकते हैं, है ना. देयर आर बेनिफिट्स नो डाउट, बट देयर आर नेगेटिव एस्पेक्ट्स आल्सो. So she is actually giving an example of a girl who committed suicide because of her mobbed photo को edit कर दिया, इधर की उधर लगा दिया. Okay, and then made viral. किसी और की फोटो कहीं और लगा दिया. I mean this is very easy not to do and it is very difficult to catch and arrest everyone. सबको पकड़ना बहुत मुश्किल है. कोई कब कहीं किसी के फोटो यहाँ से वहां लगा दिया एडिट करके, ये वो. And I mean that is why I mean when actually कोई किसी का इमेज खराब हो जाएगा ना. So if you are actually editing it and viral, making the video viral, so you are actually defaming someone. तो किसी की respect destroy हो जाती है. That is what she has given an example. So mobbed image, फिर blackmailing वगैरह करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप हमको इतना पैसा दे दो, give me this much amount of money, otherwise I will reveal your fake videos or images. तो ऐसे blackmail भी लोग करते हैं ना. So these are the things being talked about. Cyber bullying also happens. Cyber threats. फिर ransomware डिमांड होता है. ransomware अटैक कर दिया कंप्यूटर में, कितना पैसा दो क्रिप्टो करेंसी से, then I will allow your computer to work or something like that. ठीक है, तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं. सो दैट इज कॉजिंग आई मीन स्ट्रेस डिसऑर्डर, सुसाइडल थॉट, एंजाइटी. अब किसी जो बेचारा विक्टिम है, either it can be male or female, I mean sometimes he or she feels very bad कि my image will be destroyed in the society if my morphed image will be produced in the public and all. उसके लिए there is a provision in IT Act and what we call it as section 69 capital A, है ना, talks about the center has power to block, है ना. तो देखो जैसे लिखा हुआ भी है कि पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर. ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे कि क्या क्या, इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, है ना, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट, है ना, और एनी अदर रीजन. अगर गवर्नमेंट को लगे कि उसको ब्लॉक कर देना चाहिए तो गवर्नमेंट के पास पावर है ब्लॉक करने का. लेकिन उसके 2-3 इश्यूज भी होते हैं. अब इश्यूज क्या है कि डिले इतना फास्ट नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई, मान ली कोई XYZ है and he put a morphed image of someone, इमेज को एडिट करके, morphed image मतलब एडिट किया हुआ, तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, किसी का डाल दी. अब ये इतना तेज वायरल हो गया,
So even if the government official get to know this and they will pass an order, मान लीजिए फेसबुक पे डाल दिए, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को पता चला, अब उसने इन्फॉर्म किया फेसबुक को इमीडिएटली कि आप उसको इस इमेज को हटाओ, उससे पहले पहले पूरा वायरल हो जाता है, बिकॉज आई मीन थिंग्स गो सो फास्ट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इमीडिएटली। फॉरन कंट्रोल करना बहुत इमीडिएट होता, बहुत मुश्किल होता है, उस वक्त तक पूरी इमेज या वीडियो फैल चुकी होती है। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस रिगार्ड, है ना, इसको पकड़ना, ये इसको रेगुलेट करना मतलब काफी मुश्किल है, टफ है। सो दिस इज एक्चुअली अ चैलेंजिंग टास्क। दूसरी चीज अगर आप देखोगे साइबर अटैक्स में भी कन्विक्शन बहुत कम होता है, कन्विक्शन रेट इट्स वेरी लेस। इसको कोर्ट में प्रूव करना बहुत मुश्किल है। कोई अगर साइबर अटैक किया, अब कोई कहीं और बैठा, मान लो समवन इज सेटिंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, समवन इज सेटिंग इन नेदरलैंड एंड इट इज अटैकिंग यू, यू आर सेटिंग इन दिल्ली थ्रू साइबर अटैक, आपका बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया, गॉड फॉरबिड, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिल्ली पुलिस टू गो इन नेदरलैंड एंड अरेस्ट दिस पर्सन। Second thing is it is very difficult to catch that the cyber attacker is sitting where, है ना। दूसरी सबसे मुश्किल चीज है कि जो बंदा साइबर अटैक कर रहा है वो कहां पर बैठा हुआ है, किस दुनिया के किस कोने में बैठा हुआ है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है कई बार। सो दैट इज एन इशू दैट साइबर अटैक्स में कन्विक्शन रेट इज वेरी लेस। देखो देन शी इज टॉकिंग अबाउट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। देखो एक गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट, ये पढ़ लेना, विशाखा गाइडलाइंस, एक कई बार न्यूज में रहता है। And this is whenever this will be taught everywhere, किसी भी आप कंपनी में जाओगे, whether it's government company or private company and all, this will be taught that Vishakha guidelines. Then POSH Act was formed later on, Prevention of Sexual Harassment Act 2013. So this guideline of Supreme Court and this law deals with the prevention of sexual harassment at workplace. तो उसके लिए there is ICC internal complaint committee is there, जिसमें more than half of the members should be female। ठीक है, ये सब बात है कि if there is any case regarding that, then ICC will be deciding, inquiring the complaint and all। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके, यस, विशाखा गाइडलाइंस इज इंपॉर्टेंट। यस प्रांजलि, यू आर राइट। हाँ, ओके। फिर एक है थर्ड ऑफ सेंट्रल वार्सिटी टीचिंग पोजीशन। वार्सिटी मतलब वही यूनिवर्सिटी को कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इज लाइंग वैकेंट। मतलब वो बताने ये चाह रहे हैं कि 1/3 जो फैकल्टी टीचर की जो सीट है टीचिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो खाली है, which is of course a serious issue। कितने लगभग देखो यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट है, इतना फील्ड है, ये वैकेंट है 18,000 के आसपास है, 6,000 वैकेंट है, सो 1/3 लगभग हो गया, है ना। सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, है ना। सो देन इज दिस इज द क्राफ्ट। इतना याद नहीं रखा, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखो इस समय कितनी कितनी वैकेंसी है, दीज आर द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब देखोगे जनरल्स में वैकेंसी कम है, बट जिसमें रिजर्व सेक्शन है दे हैव अ ह्यूज वैकेंसी एंड दैट इज एन इशू, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 71% वैकेंट सीट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसमें ऑफ कोर्स वी नीड टू हायर। तो हायरिंग से 2-3 फायदा होगा। हाँ, यस गौरी, यू आर राइट, गुड प्रोफेसर्स इन दे आर गोइंग अब्रॉड फॉर मोर मनी, यस दे विल गेट मोर मनी देयर। तो जो ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ब्रेन ड्रेन। तो यहाँ से पढ़ लिया, IIT वगैरह कर लिया, दे लेफ्ट द कंट्री एंड दे आर अर्निंग मोर इन अदर कंट्रीज एंड ऑल, दैट इज एन इशू। यस, सो वी हैव टू इंसेंटिवाइज देम टू बी हियर, है ना। तो एक मसला ये है। सो दैट इज व्हाट, इसको एक बार पढ़ लेना आप, है ना, जस्ट गो एंड रीड इट। ओके, व्हाई आर टोमेटो प्राइसेस स्टिल हाई, टमाटर के दाम इतने महंगे क्यों हैं? तो इसके बहुत सारे रीजन होता है। देखो मेन चीज, कभी भी कोई प्राइस जो होता है, प्राइस जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, ठीक है, बस इतना याद रखना। अगर सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो प्राइस कम हो जाएगा। डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई उतना ही है, सप्लाई डाउन हो गया तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। आई मीन दिस इज लॉजिक बेस्ड, है ना। ओके, तो जैसे टोमेटो प्रोडक्शन कहां पे सबसे ज्यादा होता है, सो द ऑथर इज सेइंग कि ये सब रीजन, देखो इस रीजन में टोमेटो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है ना। आंध्र प्रदेश, फिर लिखा है मध्य प्रदेश, है ना, फिर लिखा है कर्नाटक, देन ओडिशा, देन गुजरात एंड महाराष्ट्र, है ना। तो बताए ना, इस रीजन में टमाटर टोमेटो इज वेरी फेमस, है ना। और ये खरीफ और रबी दोनों में आता है। खरीफ इज समर क्रॉप, जो गर्मी में उगाया जाता है, रबी जो है ठंडा में उगाया जाता है, विंटर में, है ना, विच इज हार्वेस्टेड इन मार्च एंड ऑल, है ना। सो उसमें बता रहे रबी हिट्स द मार्केट बिटवीन मार्च में उगाया जा, मतलब हार्वेस्ट किया जाता है ना। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सम रीजन्स इन महाराष्ट्र और हिमाचल में भी एबल टू ग्रो टमाटो, जैसे हिमाचल में भी बाढ़ वगैरह आ गया, है ना, सोलान वगैरह में। सोलान आपको नियर शिमला मिलेगा, ठीक है, दिस इज द प्लेस एंड ऑल। सो आंध्र प्रदेश में भी उगाया जाता है, दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। तो मल्टीपल फैक्टर्स इन डिप इन प्रोडक्शन, हमने बताया ना, अगर प्रोडक्शन कम हो जाए, इफ प्रोडक्शन गोज डाउन, डिप मतलब गोज डाउन, तो प्राइस विल इंक्रीज, बिकॉज डिमांड तो वही है ना,
डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगा एक दिन में एक बार. सो दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. तो और क्या क्या एग्जांपल बता रहे हैं देखो. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है, लो कमर्शियल रियलाइजेशन, ठीक है, फिर देन हीट वेव्स के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, एब्रप्ट मानसून. ओके, सो दीज आर द रीजंस द टॉकिंग अबाउट एंड ऑल. तो उसके बाद क्या हुआ था कि प्राइसेस नहीं मिल रहे थे, तो बहुत सारे इंफीरियर क्वालिटी वैरायटीज केम टू इट एंड ऑल. तो इसी से बता रहे हैं कि a lot of farmers shift of those who previously used to grow tomato, they are now actually shifting to other actually product like beans and all. ठीक है, तो बहुत सारे कारण की वजह से प्रोडक्शन डाउन हो गया, तो अपने आप दाम बढ़ गया. इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. प्राइस इज ऑलवेज रिलेटेड विद द टू थिंग्स, डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, ये याद रखना, इसी पर पूरा बेस होता है ना. मैंने पेड क्लास में पढ़ा है बीएस प्रांजलि, आई हैव टॉट अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मैंने एग्जांपल के साथ साथ पढ़ा है पूरा, आई स्टिल रिमेंबर, है ना. सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो आरबीआई और नाबार्ड के हिसाब से दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज नॉट वेरी गुड. दे हैव एक्सप्रेस कंसर्न कि टमाटर का दाम, तो तीन चीज का दाम बहुत सीरियस माना जाता है. टॉप्स, है ना, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो. इस सब में तीनों में सबसे ज्यादा टोमेटो का वॉलेटिलिटी है. वॉलेटिलिटी मींस प्राइस फ्लक्चुएशन इज वेरी हाई इन केस ऑफ टोमेटो. Okay, so that is what they are talking about. ठीक है, so एक basic idea होना चाहिए. Supreme Court agrees to list plea to criminalize marital rape before 3-judge bench. So I hope you are aware, section 375, there is an exception where actually marital rape is decriminalized. So there is a petition कि it should also be a criminal offense. So उसके लिए petition गया है, so they are sending it to the 3-judge bench right now. So let's see what will happen. So आपको थोड़ा सा सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी पता होना चाहिए. गो एंड रीड इट, इसको पढ़ लीजिएगा, जस्ट रीड इट, पूरा इंटायर पढ़ लीजिएगा. बस एक बार रीडिंग रटना नहीं है, बट एक जस्ट वन और टू रीडिंग इज इनफ. ठीक है, ओके. एक ये था, देखो कुछ दिन पहले था, ये मेरे से मिस कर गया था, तो मैं सोचा आज भी डिस्कस करा लो बिकॉज ये न्यूज में. इंडिया सपोर्ट्स यूएन ऑन ब्लैक सी इनिशिएटिव. दिस इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट. कितने लोगों को ये पता है ये वाली चीज, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, यू नो दिस? देखो मैं बताता हूँ फर्स्ट. देखो हियर इज इंडिया, दिस इज रशिया, ये वाला है ना, रशिया है. ठीक है, दिस इज यूक्रेन. ठीक है, ना यूक्रेन इज फेमस फॉर सोयाबीन के लिए काफी फेमस माना जाता है. फिर एक और चीज है सोयाबीन प्रोडक्शन, देन वीट के लिए काफी फेमस माना जाता है ना, ब्रेड बास्केट वगैरह क्या क्या कहते हैं, है ना, ऑयल सीड्स के लिए नॉल. अब देखो क्या होता है कि ये है ब्लैक सी. इफ ये वाला है ना, ये वाला ब्लैक सी, इफ एक्चुअली यूक्रेन वांट्स टू एक्सपोर्ट समथिंग, तो यहां से जाएगा, है ना, फिर ऐसे करके यूरोप में जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा. और यहीं पे मैंने आपको दो फेमस स्ट्रेट्स बताए. इसका नाम कोई बता सकता है? एनीवन? विच इज कंट्रोल्ड बाय टर्की. यहाँ पे इस्तांबुल में एक है, बहुत फेमस स्ट्रेट है. एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. इसमें ये था कि एक ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव साइन हुआ था, देखो लास्ट ईयर जुलाई से दिस ईयर जुलाई तक, ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए. ठीक है, that Russia will not be interfering in Ukraine. अगर वो यूक्रेन का कोई शिप जा रहा है यहाँ से, हो सकता है ना कि रशिया ने अटैक कर दिया और समथिंग लाइक दैट. सो रशिया अग्री टू इट कि ओके फाइन, योर यूक्रेन कैन एक्सपोर्ट द फूड ग्रेन टू यूरोप एंड अदर नेशंस, अफ्रीका वगैरह भी, यहाँ भी और भी कई जगह. ओके, सो दिस अग्रीमेंट वाज अ सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव ऑन सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन एंड फूड स्टेप फ्रॉम यूक्रेन पोर्ट्स. ठीक है, तो ये अब 17 जुलाई को रशिया ने एंड कर दिया एक तरह से. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड. अब इसको पढ़ लेना थोड़ा सा. ठीक है, exporters and all. So mediated by Turkey. Why Turkey? Because ये जो है ना, इस पोर्ट का नाम किसी ने बताया नहीं है. Waiting for it. Yes, very good Gauri. इस्तांबुल का जो पोर्ट है इसको कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट. ठीक है, फिर इसके बगल में एक और है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स. स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स. और यहाँ पे जो छोटा सा आप देख रहे हो, छोटा सा सी है, इसको डार्डेनेल्स सी ऑफ मरमरा कहते हैं ना, आई थिंक. हाँ, ओके, तो यहीं से जाएगा, फिर ऐसे करके पतला सा होकर के, पतला सा जगह होता है उसी में से निकाल आता है. सो आई मीन इट्स अ वेरी नैरो स्पेस, है ना, फ्रॉम वेयर एक्चुअली शिप्स आर मूव्ड. हाँ, ओके, यस प्रांजलि, यू आर आल्सो राइट. बॉस्फोरस स्टेट, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय, ये पूरा टर्की है. ठीक है, तो टर्की को तो ऑफ कोर्स टर्की विल बी गिविंग परमिशन एंड ऑल. इसीलिए देखो यहाँ पे यूक्रेन, रशिया, टर्की एंड यूनाइटेड नेशन वेयर देयर इन दिस एग्रीमेंट. अब रिसेंटली क्या है कि रशिया ने उसको एंड कर दिया है ना. रशिया एग्जिट्स यूएन ब्रोकर डील फॉर एक्सपोर्ट ऑफ यूक्रेनियन ग्रेन. व्हाट डज दिस मीन टू ग्लोबल इकोनॉमी? ठीक है, तो इसी सब की बात आ रही थी कि अब इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. 2-3 दिन पहले भी न्यूज में था और मेरे से मिस कर गया था, मैंने सोचा आज डिस्कस कर लो. ठीक है, और ये आज भी आया था. इस्तांबुल वही है, यही इस्तांबुल स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट. ठीक है, यू कैन सी. ओके, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इज लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स.
योर ऑप्शंस आर 80, 87, 71, 82. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. व्हाट इज द राइट आंसर? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडियाज रैंक. आज ही के अखबार में था. Guys, we are seeing only 15 likes, 30 is watching. कम से कम 30 plus likes ले जाओ. Everyone, please press the like button. We are working hard for you to ensure good quality content. Yes, 80 है. Yes, गौरी, प्रंजलि, प्रिया, गोपाल, आलिया और धनंजय. Yes. And who is at the top right now? जापान, सिंगापुर, नॉर्वे, यूएसए. रैंक 1 किसका है? रैंक 1 बताइए. नहीं, एक्चुअली जापान नहीं है. जापान हैज गॉट टू द थर्ड रैंक अब इस बार. रैंक 1 इज सिंगापुर. यस, रश्मिकांत, वेरी गुड. बी इज द राइट आंसर. ठीक है. हाँ, आप देख सकते हो इंडिया क्लाइम्स टू 7 पॉइंट्स. पहले 87 था, 87 से इंप्रूव करके 80 हो गया. एंड सिंगापुर इज एट रैंक 1. यू कैन सी, है ना. वी हैव इंप्रूव्ड 7 रैंक फ्रॉम 87 टू 80, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. रैंक 1 इज एक्चुअली द सिंगापुर. ठीक है. जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. इसको थोड़ा सा पढ़ लेना इस आर्टिकल को. ठीक है. ओके. फिर ये पुतिन विल नॉट बी अटेंडिंग साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट. मैंने बताया है बिकॉज साउथ अफ्रीका इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट which has issued arrest warrant against Putin. So if Putin will come to South Africa, maybe South Africa will have legal obligation to arrest him. तो इसीलिए Putin नहीं जाएंगे. Maybe he will be sending his foreign minister or some other official. ठीक है. तो कोई और मिनिस्टर जाए, हो सकता है. और क्रीमिया बैकवर्ड्स थाउजेंड्स, क्रीमिया के बारे में थोड़ा सा देख लेना बस. आई होप यू आर अवेयर दिस इज क्रीमिया पार्ट ऑफ यूक्रेन एंड ऑल. वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स, है ना. वंस अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ रशिया एंड ऑल. ठीक है. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, guys. Press the like button, share this video, and सबको like button press करते जाना last में. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.